Dear student, today we are going to discuss about geometrical isomerism. Yes, this is new point for us. Doubly bonded carbon atoms gives geometrical isomerism. Doubly bonded means कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है. कार्बन की वैलेंसी 4 है, दो बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड, रिमेनिंग 2 हो गया. ये वाला कार्बन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, सो इट विल बी प्लेनर. Doubly bonded carbon atom have to satisfy the remaining 2 valency by joining with 2 atoms or groups. If the 2 atoms or group attached to each carbon are different, ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसका दोनों वैलेंसी पे 2 एटम्स और 2 ग्रुप्स दोनों कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए. यू कैन सी हियर x एंड y, बोथ x होगा तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे दोनों डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, यहाँ पे दोनों डिफरेंट, अदरवाइज टू एक ग्रुप और एक एटम होना चाहिए, वन ग्रुप और वन एटम, और दोनों ग्रुप पे तो दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए. सो इट गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है इनका जो 2 वैलेंसी रिमेनिंग रहता है उनके ऊपर दोनों एटम्स और दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों एटम्स और दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए. are different. They can be represented by C double bond C XY XY. ये वाला कार्बन इज कनेक्टेड विद XY, ये वाला भी कनेक्टेड विद XY. जो ये वाला कार्बन है इनके ऊपर दोनों एटम्स डिफरेंट होना चाहिए. यहाँ पे ये वाला कार्बन है उनके ऊपर दोनों एटम्स डिफरेंट होना चाहिए. It can be represented in space in the following 2 ways. So this structure is planar and दोनों कार्बन पे different atoms आ रहा है. In the diagram A, 2 identical atoms means same type of atoms. Both the X or both the Y lying down on the same side. ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है इनकी एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे सेम x आ रहा है और सेम साइड पे y आ रहा है. इन द डायग्राम B you can see same atoms are opposite. एक ही साइड पे नहीं आ रहा है. ये डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे दोनों x आ रहा है, यहाँ पे दोनों y आ रहा है, यहाँ दोनों y और दोनों x ऑपोजिट साइड पे लाइन डाउन रहता है. इन द B 2x और 2y lie across opposite to each other, opposite side of the double bond. This result in different geometry. So उसका molecular formula सेम रहता है बट इसका geometry चेंज हो गया. Geometry of A and B, disposition of atom or groups in space. In space means occupied space. In the 2 arrangement is different. इनका atoms का arrangement दोनों का different आ रहा है. Therefore they are stereo isomers. Yes, whenever molecular formula same, structural formula same, but arrangement of the atoms are different in the molecules, so that is called stereoisomers. Stereo means space, arrangement in the space, arrangement in the
occupied space of the atoms. यहाँ पे atoms same arrangement only atoms का different आ रहा है, that is stereoisomers. They would have the same geometry if atoms or groups around carbon double bond can be rotated, but rotation is not free. Yes, in the alkene there is one bond between carbon, so there is only sigma bond, so rotation आ रहा है, so it gives rotamers. Here rotation is restricted, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, so रोटेशन नहीं हो सकता. ये वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, so here is not free. यहाँ दो कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड, वहाँ सिंगल बॉन्ड में क्या होता था, रोटेशन इजीली होता था. यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. यस, यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा. रोटेशन इज नॉट पॉसिबल if we are bending. Then what happens here? Like this. Bond never overlaps in each other. Here bond का क्या हो जाएगा, bending हो जाएगा. This is not possible because here is a double bond. ये double bond की वजह से उसका rotation हो नहीं सकता. So alkenes having carbon double bond, it's not giving a rotamers. Rotation is restricted. It is not free here. For understanding, this type of isomers is not rotamers. For understanding this concept, ये concept समझने के लिए, for better understanding, take two pieces of strong cardboard. दो books हम ले रहे हैं, 1 और 2. Yes, tightly we are taking this. Suppose these are double bonds, and when we rotate, one should be stable. दूसरा वाला we have to rotate, which is possible. You can see rotation is restricted. Rotation here is not possible like a alkane. Alkane की तरह यहाँ पे rotation नहीं होगा. Yes, strong cardboard and join them with the help of two nails. Hold one cardboard in your hand and try to rotate the other. Can you really rotate the other cardboard? No. Answer is no. We can't rotate. The rotation is restricted in the double bond. Yes, ये वाला bond alkane की तरह rotate नहीं होगा, restricted. This illustrates that, ये कह रहा है कि restricted rotation of atoms or group around the doubly bonded carbon atoms. जो double bond से bonded हो चुका है, वो कार्बन एक दूसरे के साथ rotate नहीं होगा. Gives rise to different geometry. Yes, right, different geometry of such compound. The stereoisomers of this type of are called geometrical isomers. So this type of isomers जो rotate नहीं होगा और दो different type of structure दे रहा है. So this is called geometrical isomers. The isomers of the type A, ये वाला type A, in which two identical atoms or group lying on the same side. Once again I am telling you, in the structure A, ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला दो डिफरेंट एटम्स, यहाँ पे दो डिफरेंस है,
but identical same type of atoms is lying down on same side. डबल बॉन्ड की लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों एक्स आ रहा है, राइट हैंड साइड पे दोनों वाई आ रहा है. सो आइडेंटिकल सेम type of atom is lying down on same side. So this is called a cis isomer. ये वाला A is our cis isomer रहेगा. और B and the other isomer type B in which identical atoms, यहाँ पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए. तो यहाँ और यहाँ आइडेंटिकल ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, यहाँ और यहाँ ऑपोजिट साइड पे आ रहा है. सो इन विच आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप लाइंग इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. ये वाला ट्रांस रहेगा. सो in geometrical isomerism there are two type of isomer are possible, cis and trans. The cis and trans have the same structure. ये दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप इन द स्पेस, that is called configuration. ये वाला और ये वाला दोनों स्ट्रक्चर सेम दे रहा है, बट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्पेस आर डिफरेंट. यहाँ दोनों x एक ही साइड आ रहा है, दोनों x और दोनों y अपोजिट साइड आ रहा है. ओनली अरेंजमेंट इज ओनली चेंज्ड, बट स्ट्रक्चर वो दोनों का सेम रहता है. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफरेंट. सो it gives a geometrical isomerism. Due to different arrangement of the atom or groups in space. Space means जो ओपन वैकेंट वैकेंसी रहता है उसको स्पेस बोलेंगे. जगह, जगह means space. In space, this isomer different in their properties. ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है. सो इसकी वजह से उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट रहता है. लाइक मेल्टिंग पॉइंट at a particular temperature which converts into liquid, that is melting point. At particular temperature where it converts into gaseous state, boiling point. Solubility means solubility in water, how much amount dissolves, which is solubility different रहेगा. Geometrical और cis trans isomer of butene are represented. ये वाला butene है. Yes, this one is butene. You can see 1, 2, 3 and 4. C1, C2, C3, C4. Okay? यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है. यस, ओके. ये वाला कार्बन दो अलग ग्रुप और एटम्स अटैच है. यस. यहाँ पे दो अलग एटम्स और ग्रुप आ रहा है. यस. और सेम साइड पे डबल बॉन्ड की सेम साइड पे आइडेंटिकल ग्रुप्स आइडेंटिकल एटम्स आ रहा है. सो ये वाला सिस रहेगा. इन दिस केस डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप्स आ रहा है. सो ये वाला ट्रांस रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड सिस ब्यूटेन. बॉइलिंग पॉइंट 277 केल्विन है. ये वाला बॉइलिंग पॉइंट 274 दे रहा है. cis form of alkene is found to be more polar than trans form. For example, ये वाला more polar है. यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहता है. सो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है उसका बॉन्ड पोलर नहीं होता. बट
ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला sp3। सो जो पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कार्बन की ओर रहेगा। सो ये वाला कार्बन पार्शली नेगेटिव और ये वाला पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेम, ये वाला पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्शली नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। सो उसका पोलैरिटी टू वेक्टर्स लाइक दिस। सो दोनों वेक्टर का कंबाइंड वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, उसका कंबाइंड वेक्टर ये रहेगा एक्चुअल पोलैरिटी। सो दिस वन इज पोलर बाय नेचर। डाइपोल मोमेंट ऑफ ब्यूटेन इज 0.33 d by, यस इसकी पोलैरिटी 0.33 d, d इज यूनिट d बार पोलैरिटी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो डाइपोल होता है उसका पोलैरिटी एवरेज पोलैरिटी 0.33 रहेगा। एंड ट्रांस ब्यूटेन इज ऑलमोस्ट जीरो। व्हाई? यू कैन सी यहाँ पे पोलैरिटी दिस साइड आ रहा है, यहाँ पे पोलैरिटी ये साइड आ रहा है, तो दोनों वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा, वैल्यू सेम और कट हो जाएगा। मीन्स ट्रांसब्यूटेन इज नॉन पोलर, ये वाला पोलर नहीं रहेगा। सो इसका डाइपोल मोमेंट 0 d by आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0। मीन्स ये वाला पोलर है। सो ये ज्यादा सोल्यूबल, बिकॉज वाटर है अपना पोलर होता है। सो पोलर कंपाउंड इजीली डिसॉल्व्स इनटू वाटर। ये वाला लेस सोल्यूबल रहेगा और इसका सोल्यूबिलिटी ज्यादा रहेगा। मीन्स दैट ब्यूटेन इज नॉन पोलर। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग। We discussed geometry of two forms was given below, from which it is clear that the trans-butene, the two methyl group are in opposite direction. Therefore, dipole moment of carbon CH3 bond will be cancelled. यहाँ पे कैंसल नहीं हो रहा है, इसका एवरेज आ रहा है। यहाँ पे दोनों का वेक्टर ऑपोजिट कट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, thus making the trans form non-polar. In the case of solid, it is observed that trans isomer has higher melting point than the cis, और melting point यहाँ पे boiling point और solubility cis का ज़्यादा आ रहा है, but melting point in the solid state trans वाले का ज़्यादा रहेगा, because arrangement of it यहाँ पे opposite side पे चला जाएगा। So van der Waals attraction यहाँ पे more हो जाएगा। So trans वाले का melting point ज़्यादा रहता है than cis due to arrangement in the space. So physical property are different of cis and trans isomers. Geometrical or cis trans isomerism is always shown by alkenes. कौन कौन से टाइप के alkenes geometrical isomerism दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड, ये वाला कार्बन पे XY, यहाँ पे XY, जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है उनके ऊपर अटैच दोनों डिफरेंट होने चाहिए। सो ये वाला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। सेम ग्रुप्स आर कमिंग ऑन सेम साइड, सिस सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। सो ये वाला ट्रांस ये तो देगा, बट ये वाला भी देगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे X और Y, यहाँ पे X और Z आ रहा है। यू कैन सी यहाँ पे जो दो डिफरेंट है वही दो यहाँ पे नहीं है, एक सेम है दूसरा डिफरेंट है। ये कार्बन पे दोनों डिफरेंट होना चाहिए।
यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ प्लेस चेंज कर दे जेड और एक्स, तो ये वाला सिस हो जाएगा, ये वाला ट्रांस, बिकॉज डबल बॉन्ड की सेम साइड सेम ग्रुप आ रहा है सो सिस, डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड सेम ग्रुप आ रहा है सो ट्रांस। इफ ऑल दी फोर आर डिफरेंट, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे डब्ल्यू और जेड आ रहा है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है चलेगा, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, ये दो सेम नहीं है तो भी चलेगा, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तो भी ये सिस ट्रांस देगा। यहाँ पे Z आ जाएगा, यहाँ पे W, सो ये एक वाला सिस रहेगा और दूसरा वाला ट्रांस हो जाएगा। यस, कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा? डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो ये वाला नहीं देगा। यहाँ पे दो एक्स, यहाँ पे दो डिफरेंट है और यहाँ पे सेम है, नहीं देगा। यहाँ पे दो सेम है, यहाँ पे दो सेम है, नहीं देगा। एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों नहीं दे रहे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल in those cases. Question number 13.10 of our book. Draw cis and trans isomer of the following compounds. Yes, and also write their IUPAC names also. यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, यस, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अटैच है। दिस कार्बन इज अटैच विथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दिस वन ऑल्सो अटैच विथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस वन इज cis, so cis 1,2 dichloroethene. We can draw like this also, same. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, देन सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप पर डिफरेंट होना चाहिए। यस, इफ टू आइडेंटिकल, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पे सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो ये वाला सिस रहेगा। देन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे जो ग्रुप होता है ये सेम साइड पे नहीं बट ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, सो ये वाला ट्रांस रहेगा। 1,2 dichloroethene. One word we have to add in this name, IUPAC. Cis 1,2 dichloroethane and trans 1,2 dichloro. Why? Same kind of groups are opposite to each other. यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, here H, here Cl, here is Cl, here is H. डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो सिस ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, सो ट्रांस। ओके, दिस वन आंसर फॉर 1. नाउ व्हाट अबाउट सेकंड? इन द केस ऑफ सेकंड यू कैन सी ये वाला कार्बन attached with methyl and ethyl, here is double bond, so carbon carbon having double bond. On this carbon there is a methyl group and here is ethyl group, here is methyl group and here is ethyl. C2H5 means
इथाइल ग्रुप आ रहा है, डबल बॉन्ड की सेम साइड पे मिथाइल ग्रुप और सेम साइड पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, इमेजिनरी लाइन लेना चाहिए। डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो दिस वन इज द longest chain, 1 2 3 4 and 5 6, so 1 2 3 4 5 और 6 ये दो ब्रांचेस हो जाएगा 6 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन रहेगा, ये वाला 6। then when we draw same group are on opposite direction, तो मिथाइल ऑपोजिट साइड पे ले लिया और दो इथाइल ऑपोजिट साइड पे ले रहे हैं। सो ये वाला डबल बॉन्ड की ऑपोजिट दो इथाइल आ गया, दो मिथाइल ऑपोजिट साइड आ गया, सो ये वाला ट्रांस रहेगा। ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 and 6 ये दोनों ब्रांचेस आ रहा है, सो ट्रांस 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन रहेगा। दिस इज आवर आंसर। यस, अब सबको समझ में आ गया है क्या करना होता है, कैसे करना होता है। हियर क्वेश्चन नंबर 13.11, which of the following compounds will show cis trans isomerism? कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स cis trans isomer देगा? One by one we have to check. On this carbon there is double bond and both methyl groups are lying down there. On this carbon there is one hydrogen and one ethyl group, ये वाला no, but on the same carbon both groups should be different, so this one is not giving geometrical isomerism। ये कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, ओके, बट ये वाला कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ रहा है, सो सेम कार्बन पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उनके ऊपर दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, सो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। सेकेंड वन, हियर इज CH2, डबल बॉन्ड के बाद दोनों हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन के साथ ब्रोमीन आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑन सेम कार्बन दो ग्रुप्स सेम आ रहा है, यहाँ पे सेम, सो नो। फर्स्ट एंड सेकेंड इज नॉट गिविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला कार्बन पे दो हाइड्रोजन आ गया, नहीं चलेगा। ये वाला कार्बन पे दो ब्रोमीन आ गया, सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट होने चाहिए, so 1 or 2 is not giving a geometrical isomerism. What about third one? In C double bond C, here is one hydrogen C6H5, ये फिनाइल ग्रुप रहेगा, here is H and here is CH3, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और CH3 आ रहा है, सो ये कार्बन पे दोनों डिफरेंट है, यस, ये वाला कार्बन पे दोनों डिफरेंट है, यस, और डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो सिस। अब इफ दो हाइड्रोजन ऑपोजिट ले लेंगे, यहाँ पे C6H5, यहाँ पे CH3, तो ये वाला ट्रांस हो जाएगा, सो थर्ड वन is giving geometrical isomerism. No. What about fourth one? What about fourth one? Here C double bond C, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, सेम। ये वाला कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है,
सो ये वाला सिस रहेगा। डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो सिस। डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप आ रहा है, सो ये वाला ट्रांस हो जाएगा। यस, 1 2 3 4 सिस ब्यूटेन, ये वाला ट्रांस ब्यूटेन। So third one and fourth one is giving geometrical cis trans isomerism. Now bye. We will meet in our next lecture. Till then, bye.